students, welcome to our next video. This video is for class 7 and we are in chapter 6, the triangle and its properties. So in our last video we just gave an introduction of triangle and the types of triangle. Now we learn some of the new properties of triangle. Okay, so now first we will learn what is medians of a triangle. Medians क्या होता है? Triangle के लिए एक median क्या होता है? So median ये होता है, यहाँ पे पढ़ो एक मिनट. Median of a triangle is a line joining a vertex of the triangle and the midpoint of the side opposite to it. That means we are talking about a vertex and side opposite to it. मतलब we in our last video we learned which are the vertex and what are the sides opposite to them. So now if I'll give it a name ABC triangle, if I'll take this vertex A, then vertex A के opposite में कौन सा side है? कौन सा side है? Side BC. So ये जो median है, median क्या बोलता है? ये एक line है जो vertex से लेकर opposite side के mid point को join करता है. Mid point मतलब जो एकदम बीच में जो point है, ठीक है? Mid point का क्या मतलब है? If I'll take this mid point, that means यहाँ से यहाँ तक जितना distance है, यहाँ से यहाँ तक उतना ही distance रहेगा. So suppose I name this point as D. So that means if we'll join a vertex with the midpoint of the opposite side, we get a median. Okay. Similarly, if we'll take this vertex B and इसके opposite में कौन है? Side AC, उसका midpoint बीच में. So now we don't need to draw it. मतलब particular midpoint हमें draw करने की ज़रूरत नहीं है. We are just learning it to understand, right? उसी तरह अगर C वर्टेक्स को मैं लेती हूँ तो C वर्टेक्स से इसके ए बी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं. सो दिस इज लाइक दिस. ओके, एंड रिमेंबर थ्री ऑफ द medians will intersect at one point at the middle of the at somewhere middle of the triangle. ओके, मतलब जो कोई भी वर्टेक्स लो उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लो, उन दोनों को ज्वाइन करो, you will get a median. Okay, so now you can see how many median can be possible for a triangle, given triangle. Yes, there are 3 medians possible. Okay, so here if I will give it AD, suppose this is point E, this is point F, then our medians are AD, BE and CF. CF are the medians. Okay, so median of a triangle is a line joining vertex of the triangle and the midpoint of the, so midpoint is very important. Median, midpoint, याद रखना, ठीक है? So now come let's discuss some question. How many medians can a triangle have? You can see clearly you can have 3 medians. 3 medians for a triangle, right? Answer. Second, does a median wholly in the interior of the triangle? देखो, median का कोई भी पार्ट ट्रायंगल से बाहर जाता है क्या? नहीं. जितना भी तुमने मीडियन ड्रॉ किया हुआ है सारा का सारा वो ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में रहता है. सो इसका आंसर क्या होगा? यस, ऑल पार्ट्स ऑफ अ मीडियन लाइज इंटीरियर टू द ट्रायंगल. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. Now let's jump towards another new thing. It is called altitude. What is altitude? Okay, so altitude of a triangle. Let's read this. Altitude पहले पढ़ो. It is a line joining a vertex. Again it starts from a vertex. Okay, जैसे लास्ट में था line joining from vertex to somewhere, यहाँ पे भी vertex से शुरू होता है. Of a triangle and a point on the side opposite to it. अच्छा, यहाँ पे भी हमने opposite side के बारे में बात किया है, पर कुछ point के बारे में बात किया हुआ है. एक point on the opposite side to the vertex such that it forms a right angle at that point. क्या मतलब है इसका? मतलब if we start from a vertex and we are taking a point somewhere on the opposite side. Suppose this triangle is ABC. Okay, now if I will start from A and I have to join somewhere on the साइड BC, बट कौन सा पॉइंट मुझे लेना है? वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होना चाहिए? वो पर्टिकुलर पॉइंट वही होना चाहिए जहाँ पे ये राइट एंगल क्रिएट करता है. ठीक है,
अच्छा सपोज इफ़ आई विल टेक दिस पॉइंट, आप ये देख लो, इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनता है? नो। सो ये नहीं होगा, हमें वो चाहिए जहाँ पे वो 90 डिग्री बनता हो। सो दिस पॉइंट, ठीक है ना, AD इज द, AD here, AD is the what? Altitude of the triangle. Okay. Similarly, now come to this right angle triangle. अच्छा, आप बोलोगे कि मैम इसका क्या एक ही पॉसिबल है? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टेक्स. सो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, 3 वर्टिसेस है. सो तीनों से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करूँगी तो ये सेकंड अल्टीट्यूड हुआ. यहाँ पे भी अगर मैं ड्रॉ करूँगी ये थर्ड अल्टीट्यूड हुआ. तो यहाँ पे भी 3 अल्टीट्यूड्स पॉसिबल हैं. ओके, नेक्स्ट कम टू दिस. यहाँ पे इफ़ आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. दैट मीन्स ये यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री बना चुका है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो इस वर्टेक्स से तो ये यहीं पॉइंट पर ही आकर टच करेगा क्योंकि हमें 90 डिग्री चाहिए और यहीं एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री बन सकता है. सो दिस इज एन अल्टीट्यूड. ओके, अगर फिर सपोज आप इस वर्टेक्स से लेते हो, यहाँ से ड्रॉ करते हो तो अगेन इसी पॉइंट पे आके आपका 90 डिग्री बनता है. दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उसके साइड्स ही उसके वर्टेक्स हैं, सारा साइड्स नहीं होता. उसका जो हाइपोटेनस है वहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो. इफ़ आई ड्रॉ दिस, यहाँ पे 90 डिग्री बना तो ये हुआ अल्टीट्यूड. सो राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ ऑल्सो 3 अल्टीट्यूड्स बट 2 ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, उसका 2 अल्टीट्यूड क्या है उसके साइड के हिसाब से काउंट किया जाता है. ठीक है. सो नाउ कम टू ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल इंटरेस्टिंग. मैंने कहा कि एक वर्टेक्स से आपको इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि वो बेस में 90 डिग्री बनाता हो. तो यहाँ से आप कहीं भी, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इस पॉइंट से अगर आप लेंगे तो आप कहीं भी अंदर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं ड्रॉ कर सकते. सपोज इफ विल टेक दिस पॉइंट, ये 90 डिग्री नहीं होगा. इसी तरह कोई भी पॉइंट लो, ये 90 डिग्री नहीं बन सकता. सो आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री तो सीधा ड्रॉ होता है. सो दैट इज द एल्टीट्यूड. सपोज दिस इज PQR ट्रायंगल था मेरे पास, तो मैंने अभी ये M पॉइंट दे देती हूँ. सो नाउ PM इज एल्टीट्यूड. एंड फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, देखो एल्टीट्यूड कहाँ पर है, एंगल के ट्रायंगल के अंदर है कि बाहर है? बाहर है. ठीक है. फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर लाए होगा. ठीक है. एंड फॉर ये तीनों के लिए 3 चीज़ें आपको याद रखना है. एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए तीनों के तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो अंदर रहेंगे. एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसके 2 साइड्स जो होते हैं वो एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, जो 90 डिग्री को 90 डिग्री के एडजेसेंट होते हैं, वो दोनों एल्टीट्यूड होते हैं एज वेल एज साइड्स होते हैं. ठीक है. एंड ऑब्ट्यूस के लिए, ऑब्ट्यूस के लिए उसका जो एल्टीट्यूड है वो बाहर की तरफ लाई करेगा. ठीक है. सो एल्टीट्यूड का मतलब वो बेस में 90 डिग्री डेफिनेटली बनाता होगा. ओके. और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ द ट्रायंगल. ये याद रखना, हाइट ऑफ द ट्रायंगल मतलब आप बोलोगे मैम एक ट्रायंगल का 3 एल्टीट्यूड है तो 3 हाइट्स कैसे हुए? होगा, ये डिपेंड करता है कौन से बेस पर वो बना है. ठीक है. फॉर अ पर्टिकुलर बेस, कोई भी बेस ले लो, उसके ऊपर कौन सा हाइट है. मतलब AC बेस के लिए, अभी इसी पॉइंट को देख लूँ, AC बेस के लिए अगर मैं BC को बेस लेती हूँ तो इसके ऊपर AD हाइट है. अगर मैं AC लेती हूँ सपोज इसके ऊपर BE हाइट है. अगर मैं AB को बेस लेती हूँ तो इसके ऊपर CF हाइट हुआ. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग ऑन पॉइंट एल्टीट्यूड. सो हाउ मेनी एल्टीट्यूड कैन अ ट्रायंगल हैव? आंसर इज clearly three altitudes. So will an altitude always lie in the interior of the triangle? Look at this. Always, क्या ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है, will an altitude always lie in the interior? हमेशा वो इंटीरियर में रहता है क्या? नो. फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सो इसका आंसर क्या आएगा? नो. फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल altitude lies outside. Okay. So for obtuse angle triangle, altitude lies outside of the triangle or exterior of the triangle. अच्छा, can you think of a triangle in which 2 altitudes of the triangle are 2 of its sides? So यहाँ पे पूछा गया है, क्या कोई ऐसा ट्रायंगल आप बता सकते हो जिसके लिए उसका 2 साइड जो है वो तो एल्टीट्यूड है? आपको पता है कौन सा वो ट्रायंगल है
जिसके लिए उसके दो साइड्स, दो एंगल्स, दो साइड्स, दो एल्टीट्यूड होते हैं? कौन सा है? राइट एंगल. So this is right angle triangle. Okay. Now last question. Can altitude and median be same for a triangle? Altitude and median same होता है क्या एक ट्रायंगल के लिए, कोई ट्रायंगल के लिए? बेसिकली ये दोनों डिफरेंट होते हैं, पर अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? जिसका 3 साइड्स इक्वल होते हैं, वहाँ पे एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक होते हैं. उसी तरह इफ वी विल टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल, पर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक कंडीशन है. क्या है उसका? जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, जो दो साइड्स इक्वल हैं उन्हीं के बीच में एल्टीट्यूड रहना चाहिए. अगर उस तरह होता है तभी एल्टीट्यूड एंड मीडियन इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा. समझ में आया? सो मतलब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड के बीच में अगर ट्रायंगल रहा, सॉरी एल्टीट्यूड रहा, एल्टीट्यूड के ईदर साइड पे इक्वल साइड्स रहेंगे. समझ में आया? तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है. सो आंसर क्या है? वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, अनदर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेयर द एल्टीट्यूड लाइज in between the equal sides, or the equal sides lie either side of the altitude. Okay, so वही मैं लिख लेती हूँ. So now look, I have written. So answer is yes. First one is equilateral triangle and second one is isosceles triangle where equal sides lie on either side of the altitude. either side का मतलब पता है? मतलब एक तरफ एक इक्वल साइड है, दूसरी तरफ अनदर इक्वल साइड रहेगा. ठीक है. सो इस कंडीशन में हो सकता है. सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.